نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین سو آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 19واں پارہ جو ہے الجزء التاسع عشر جو ہے، ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 اس کی تلاوت کی گئی، اور ہم باقی تمام پارے کی جہاں سے جتنی صورتیں آئیں گی اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے۔ تو یہ پہلے بھی ٹاپک بات اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور یہ چیز بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کفر کرتے ہیں، تو وہ بار بار مذاق بھی کرتے تھے اور بالکل جیسے جھگڑے والی بات کر رہے ہوتے تھے کہ وہ مدد کہتے تھے کہ فرشتے ان پہ اتارے جائیں، اور فرشتے اور یا عذاب کے ہوں یا یہ کہ یوم محشر کے جو ہے رزلٹ ڈے والے ہوں۔ بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے ان کو زندگی میں کام کا موقع نہ دیا جاتا، وہ یہ چیز نہیں جانتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے، اور کسی کے ڈیمانڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ پورا جو کائنات کا نظام ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ان کا دنیا میں ان کو کیا ملا، کیونکہ آخرت تو بھی کسی نے نہیں دیکھی۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے اس پیغام کا، جیسے نبی پہلے بھی آتے رہے ہیں، ان کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ جیسے پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ جو بستیاں تباہ ہو گئیں ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن جب لوگ بات کرتے ہیں جو کہ ایک ٹرانس میں آئے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو وہ تکبر میں، خاص طور پہ جیسے سرداران قریش اور ان کے ساتھ ملے ہوئے تمام لوگ، تو وہ اپنے آپ کو رائٹ پہ سمجھتے ہوئے بہت ہی اکھڑ طریقے سے جو ہے وحی کا جواب دے رہے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے کہ یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ وہ بھول جائیں گے کہ دنیا میں ان کو کتنی جو ہے نعمتیں ملی ہوئی تھیں اور کتنا ٹائم ملا تھا، اس وقت وہ ان کو یہ لگے گا کہ وہ محروم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ اگر انہوں نے کوئی نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو چونکہ ان کو اللہ پہ اعتبار ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو ہر عمل تو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور عمل کا ثواب یا جو ہے اس کی جزا اور سزا کہہ لیں اللہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کس طرح سے اس چیز کی جزا دے جو کہ انسان گناہوں میں ڈوب کر کے ایک آدھا کوئی اچھا عمل کر لے، تو وہ بالکل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ البتہ جس دن جنتیوں کا جو ہے کھانا بھی بہتر ہوگا اور ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کی خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی، تو ان کا رہنے کی جگہ اور ان کے خوابگاہ جو ہوتی ہے کہ سونے اور جاگنے کی جگہ، جو بھی وہاں پہ ان کا ٹھہرا ہوگا وہ سب سے زیادہ بہترین ہوگا۔ جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، یعنی کہ یہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، یعنی ملکیت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس دن کافروں پر وہ بڑا بھاری دن ہوگا۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کو چھوڑ رکھا تھا تو ہم سمجھتے کہ پہلے کی امتوں کے رسول ہیں، بلکہ یہاں پہ جو قرآن کا لفظ آیا ہے، قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ امت محمدیہ بھی جو ہے وہ ایک وقت میں اپنے دین کے جو ہے پر پورا عمل نہیں کریں گی، اور قرآن کو چھوڑ رکھنے کی جو بات ہے وہ اسی طریقے سے یہاں پہ آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تھے تاکہ قرآن سنا بھی نہ جائے، اور ایمان لانا تو اس کے اوپر دور کی بات تھی، عمل تو اس کے علاوہ بھی دور کی بات تھی۔ تو لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے پوری قوم جو اس وقت مشرکین مکہ کی تھی، اس میں جتنے بھی لوگ ایمان لائے، ان کے علاوہ جنہوں نے اس کو چھوڑا اور اس کے اوپر عمل نہ کیا، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہگاروں کو بنا دیا ہے، اور تیرا رب بھی ہدایت کرنے والا ہے اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتار دیا گیا، یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایک کتابی شکل میں جو ہے وہ بات جو ہے دے دی جاتی ہے، اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ ہم اس کے آپ کا دل قوی رکھیں، اور ہم اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب
और उम्दा तो जी आपको बता देंगे। जो लोग अपने मुँह के बल जहन्नुम की तरफ जमा किए जाएँगे, वही बदतर मकान वाले और गुमराह तर रास्ते वाले हैं। अभी से पहले जो है जो जन्नतों में रहने वाले होंगे, उनके ठिकाने और ख़्वाबगाह का ज़िक्र किया गया और अब इनकी रविश और इनकी बातें बयान करने के बाद जो लोग काफ़िर हैं, उनका जवाब जो है बता कर के तो अल्लाह ताला के नबी को ये बताया गया और उनके ज़रिए हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि इन लोगों का ठिकाना क्या होगा। तो बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी और इनके हमरा इनके भाई हारून को इनका वज़ीर बना दिया और कह दिया कि तुम दोनों इन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयतों को झुठला रहे हैं, यानी फ़िरऔन की तरफ। फिर हमने इन्हें बिल्कुल ही पामाल कर दिया, यानी उन लोगों को तबाह कर दिया। और चूँकि इसके दरमियान जो वाक़या हुआ है, पूरी कहानी हुई है, एक आयत में बयान कर दी गई है, जो कि हम बार-बार टुकड़ों-टुकड़ों में इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई जब मौका होता है, जो उस बात को बयान करने का, तो अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस हिसाब से वही नाज़िल कर रहे थे। एक ही दफ़ा किसी का वाक़या जो है, उनकी ज़िंदगी के हालात जो बताने ज़रूरी हैं, वो एक ही दफ़ा में नहीं बताए गए। और कौम नूह को भी जब रसूलों ने झूठा कहा तो हमने इन्हें गर्क कर दिया और उन लोगों के लिए निशानी इबरत बना दिया। हमने ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है और आदियों और समूदों और कौमें वालों को और उनके दरमियान बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया। आद और समूद का भी हमने वाक़या पढ़ा। यहाँ पे कुएँ वालों की बात आई है, असहाबुर रास जो है, तो रस जो है उसको या रसा के मानी जोन से हैं वो कुएँ के होते हैं। असहाबुर रास कुएँ वाले लोग। इसके तय्युन में जो है मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। इमाम इब्न जुरैर तबरी ने कहा कि इससे मुराद असहाबुल अखदूद है, जिनका ज़िक्र सूरह बरूज में है। ये इब्न कसीर ने इसको जो है जो है इसको लिखा है। तो बात ये है कि ये कौन-सी कौम थी जिनके बारे में इस तरह से मज़ीद जब इसके बारे में आगे मतलब उस तरह से है तो बताया जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसके मुतल्लिक जो है वो ज़्यादा अहादीस में जो है ज़िक्र नहीं है। तो जिन चीज़ों को अल्लाह ताला जितना बयान करते हैं वो उतना ही उसको समझना चाहिए, इल्ला ये कि हम उसको अपने पास से जो है वो बयान बना लें। इनके दरमियान बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया, यानी इनके दरमियान भी जो है अल्लाह ताला के नबी आए और उम्मतें भी आई, इनके दौर में या इनके बाद भी। तो जो कौमों का वक़्त होता है वो इतना ज़्यादा लंबा टाइम स्पेन नहीं है, लेकिन उसके बाद जो वो ख़त्म की गई तो उनके अलावा भी दुनिया में और मौजूद थी। और चूँकि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारते वक़्त ये कहा था कि वो दुनिया में जब जाएँगे तो अल्लाह ताला उनके पास अपने पैगाम यानी कि अंबिया को वो भेजेंगे पैगाम दे करके। तो उन्होंने हर ज़माने में हर जगह के ऊपर अंबिया को भेजा। ये और बात है कि कुरान पाक में जिन का ख़ास चुने हुए पैगम्बरों का ज़िक्र हुआ है, उनका ज़िक्र कुरान पाक में पाया गया। लेकिन इसके अलावा जो एक रवायत में तादाद जो इसकी बताई थी 1,24,000 पैगम्बरों की तादाद है। तो अगर पैगम्बरों की तादाद इतनी ज़्यादा है, तो लाज़िम तौर के ऊपर कितनी बस्तियों, कितनी आबादियों में वो गई होंगी उनकी तादाद, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर के वो मबूस हुए होंगे उस जगह पे। और ये जो जिन कौमों का ज़िक्र बताया जा रहा है कि वो हलाक कर दी गई, तो तबाहशुदा कौमों की तादाद भी इससे ज़्यादा है, जिसका कि आयत में ज़िक्र किया जा रहा है। हमने इनके सामने मिसालें बयान की, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद कर दिया। यानी कि उनको वक़्त दिया गया था, उनको पूरा पैगाम पहुँचाया गया था, मिसालें भी दी गई थी। जैसे कि अभी भी मुशरिकीन मक्का के सामने उन कौम अक़वाम की मिसालें भी दी जा रही हैं, तमाम बात समझाई जा रही है। ये लोग इस बस्ती के पास भी आते-जाते रहते हैं, जिस पर बुरी तरह बारिश बरसाई गई थी। तो अल्लाह ताला ने दोबारा यहाँ पे उन तबाहशुदा बस्ती का ज़िक्र किया, जिस बस्ती का नाम बल्कि जिसको मतलब कौम लूत की बस्ती जो सदूम और आमूरा वगैरह है। और ये जो थी ये अरब इलाकों के नज़दीक ही थी, यहीं से गुज़र के काफ़िले इनके जाया करते थे। और ये बस्तियाँ शाम और फ़लस्तीन के रास्ते में पड़ती थीं। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने इनकी मिसाल दी कि इनके ऊपर पत्थरों की बारिश जो-सी है वो बरसाई गई थी। क्या फिर भी इसे नहीं देखते? हकीकत ये है कि इन्हें मरकर जी उठने की उम्मीद ही नहीं है। मुशरिकीन मक्का के पास चूँकि एक अरसे तक कोई नबी नहीं आए, ज़िक्र नहीं है हमारे पास कि हमें पता चल सके कि हज़रत इस्माइल के बाद जो है उनके कितने अरसे के बाद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। तो इस नस्ल में कितने पैगम्बर आए होंगे, इसका कोई हमें इतना ज़्यादा अभी तक जो है अंदाज़ा नहीं है। तो लिहाज़ा जो दीन था असल, जिसमें कि इंसानों का आखिरत में जी उठने का जो ईमान का हिस्सा था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के आने तक में मुशरिकीन मक्का उसको भूल चुके हुए थे और वो यकीन ही नहीं रखते थे। और तुम्हें जब भी कभी देखते हैं तुमसे मस्खरापन करने लगते हैं, क्या यही है वो शख्स जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है? वो तो कहते हैं कि हमने इस पर जमे रहे, वरना इसने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दलीलें थीं, मिसालें थीं, समझाने के लिए जो बात है। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उन लोगों के पास कोई दलील नहीं थी, कोई मिसालें नहीं थीं। और वो सिवाय ये कि उनके बाप-दादा जो हैं, वो इस दीन पे अमल करते आ रहे हैं और वो अपने माबूदों की मोहब्बत में ज़्यादा जमे हुए हैं और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो इस चीज़ का इज़हार भी इस आयत में हो रहा है। और ये जब अज़ाबों को देख लेंगे तो इन्हें साफ़ मालूम हो जाएगा कि पूरी तरह राह से भटका हुआ कौन था। क्या आपने इसे भी देखा है जो अपनी ख्वाहिश-ए-नफ़्स को अपना जिसने अपना माबूद बनाया हुआ है, और क्या आप इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं? क्या आप इसी ख़्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते हैं या समझते हैं, ये तो निरे चौपायों जैसे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा भटके हुए। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साए को किस तरह से फैला दिया, अगर चाहता तो उसे ठहरा हुआ ही कर देता, और फिर हमने आफ़ताब को इसका रहनुमा बना दिया। साया का जो फैला देना है, उससे मुराद ये होती है कि जैसे कि रोशनी की में ऐसी डायरेक्शन होती है यहाँ पे, और कैसे वो साया जो होता है
फैला हुआ मालूम होता है, और फिर जैसे ही धूप जो-सी है वो कम होने लगती है और घटने लगती है, या सर पे भी जैसे सूरज आ जाता है, तो ये मुख्तलिफ मकाम है कि साया कैसे बड़ा और छोटा होता है। अलबत्ता यहाँ पे जो है वो एक तरह से तौहीद का दलाइल दिए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात में किस तरह से साया फैलाया, तो सुबह सादिक से लेकर के सूरज के तुलू होने तक जो-सा है वो रहता है, या इसी तरीके से जो इंसानों का साया और अशिया का जो साया होता है, ये भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और ये खुद से कोई ऐसी चीज़ नहीं था, अल्लाह ताला ने जिस तरह से इसको बनाया है, इस सिस्टम को, तो ये हमारे सामने एक चीज़ नज़र आती है। और जो साया की इस तरह से भी जो बात है वो ये कि जैसे कि घने दरख्त और ये तमाम पौधे जो हैं, इनका साया जो है, इंसान जब इसमें बैठता है तो किस तरह से इर्द गिर्द धूप होती है, लेकिन इंसान के ऊपर साया होने की वजह से वो धूप नहीं आती, और इंसान किस तरह से धूप की तेज़ी और तंगी से बचता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर चाहता तो अल्लाह इसको ठहरा ही देता, हमने आफ्ताब को इसका रहनुमा बनाया। तो ये चूंकि सूरज के होने की वजह से ये चीज़ होती है, रोशनी की वजह से, तो अल्लाह ताला ने इसका कनेक्शन यहाँ पे बयान फरमाया। और फिर हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया, और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद राहत बनाई, और दिन को उठ खड़े होने का वक्त है। वही है जो बाराने रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है, और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं, ताकि इसके ज़रिए मुर्दा शहर को ज़िंदा करते हैं, और इसे हम अपनी मखलूक़ात में से बहुत से जो पायों, यानी कि 4 टाँगों वाले जानवर जो उनसे होते हैं, पाँव वाले जानवर जो होते हैं, और इंसानों को पिलाते हैं। और बेशक हमने इसमें इनके दरमियान तरह-तरह से बयान किया है, ताकि वो ताकि वो इस वक़्त को गनीमत जानते हुए, यानी कि मतलब है कि वो नसीहत हासिल करें। मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सवाए नाशुक्री के नहीं माना। अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते। बस आप काफ़िरों का कहना ना मानें। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जिस तरह यहाँ पे जो है हर बस्ती में डराने वाले का जो ज़िक्र किया हुआ है, कि अल्लाह ताला ने जैसे ज़िक्र किया कि अब तो चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान पाक जो है वो नाज़िल हो रहा है, ये वही, तो ये अब ता क़यामत तक के तमाम इंसान चाहे किसी भी बस्ती में, किसी भी इलाके में होंगे, ये उनके लिए है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमतुल लिल आलमीन है। तो लिहाज़ा अब जो है वो ये वाली बात कि हर बस्ती में एक डराने वाला अब नहीं भेजा जा सकता। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पैगाम जो है वो पहुँचना है। बस आप काफ़िरों का कहना ना मानें, और कुरान के ज़रिए इनसे पूरी ताकत से बड़ा जहाद करें, और वही है जिसने 2 समंदर आपस में मिला रखे हैं। ये है मीठा और मज़ेदार, यानी एक तरफ जो पानी है वो मीठा और मज़ेदार है, और दूसरी तरफ है खारी और कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब है, और बहुत मजबूत और करती है, तो आपस में पानी नहीं मिलता। और ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो 2 मुख्तलिफ किस्म की डेंसिटी के पानी आपस में मिलते हैं, दुनिया में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। और जो पानी है वो एक दूसरे से जिस तरह से नहीं मिलता, और के दरमियान जैसे मशरिक और मगरिब में फैले हुए बड़े-बड़े समंदरों में, जो कि ज़मीन का 3/4 हिस्सा है, तो ये पानी जौन-सा है, और एक किसी भी समंदर का पानी जौन-सा होता है वो अपनी ख़ासियत लिए हुए होता है। तो जब वो आपस में वो पानी मिलता है, क्योंकि एक ज़मीन का बड़ा हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, तो वो जो पानी मिलता है, तो पानी अपनी जो सलाहियत होती है उसके अंदर कि वो खारी है या मीठा है वो बरकरार रखता है, आपस में मिक्स होके खो नहीं देता। तो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये बहुत कमाल की चीज़ है, और इंसान इसको करने पे कादिर नहीं था। वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसे नस्ब वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया। तो अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, फिर इसे नस्ब वाला, यानी कि जो पीछे से इसके माँ-बाप के ज़रिए जो एक रिश्ता चलाता है, फैमिली ट्री, वो अता किया, और साथ में ससुराली रिश्ते जो उनसे होते हैं, वो उसको अल्लाह ताला ने अता किए। बिलाशुबा आपका परवरदिगार हर चीज़ पर कादिर है, और ये अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो ना तो उन्हें कोई नफ़ा दे सकते हैं, ना कोई नुकसान पहुँचा सके। और काफ़िर तो वो है जो अपने रब के खिलाफ शैतान की मदद करने वाला हो। हमने तो आपको खुशखबरी और डर सुनाने वाला नबी बना कर के भेजा है। आप कह दीजिए कि मैं कुरान के पहुँचाने पर तुमसे कोई मदद नहीं चाहता, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे, यानी कि आना चाहे, इसे हमेशा ज़िंदा अल्लाह पर तवक्कल करे, जिसे कभी मौत नहीं, और यानी अल्लाह ताला की सिफ़त बयान हो रही है, जैसे कि आयतुल कुर्सी में भी है, और इसकी तारीफ़ के साथ पाकीज़गी बयान करते रहें, और अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। वही है जिसने आसमानों और ज़मीन में इनके दरमियान की सब चीज़ों को 6 ही दिन में पैदा कर दिया, और फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ, यानी वो अर्श पे उनका ठिकाना बना, और वो रहमान है। आप इसके बारे में किसी खबरदार से पूछ लें। इनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो जवाब देते हैं रहमान क्या है, यानी कि अरबों के लिए ये नाम जो है वो नया था, और इसलिए उन्होंने अल्लाह को कभी इस नाम से नहीं पुकारा था। तो इसके बारे में सवाल किया, क्या हम इसे सजदा करें कि जिसका तू हमें हुक्म दे रहा है? और इस तबलीग ने इनकी नफ़रत में और इज़ाफ़ा कर दिया। बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए। तो बुर्ज जो उनसे हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह से कहा जाता है, और ये जो आयत इसकी बुर्ज से पहले वाली है, ये आयत सजदा है, कि जिसमें कि ये हम इसे सजदा करें कि जिसका तू हमें हुक्म दे रहा है, वो वाली आयत। और ये जो बुर्ज की बात की जा रही है आसमान में, तो अल्लाह ताला ने आसमान में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सियारों और सितारों का जो झुरमुट बना हुआ है, और जो दूर से नज़र आते हैं, जिनके ऊपर के एक इल्म जो है लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, ये सारा। और जैसे कि 12 बुर्ज हैं, जैसे हमल, सोर, जोज़ा, सरतान, असद, सुमदा, इस तरह के नामों के साथ साथ ये बड़े-बड़े सियारों की मंजिलें हैं, और इनकी शक्लें भी जो-सी हैं, उन शक्लों के क्लस्टर हैं, यानी इकट्ठे होकर के वो आसमान में जब रात को वो चमकते हैं तो वो नज़र आते हैं। तो ये कवाकब या ये सियारे जो-से हैं, इन बुर्जों के बारे में इस तरह से उतरते कि इनकी ये जैसे इनके आलीशान महल हैं, यानी कि ये नाम जो यहाँ पे बयान किए गए हैं यहाँ पे। तो ये बड़ी-बड़ी 7 मंजिलें
जिस तरह से भी जो बना दी गई थी, चूँकि इंसान इन जगहों पे पहुँचा नहीं है और हमारी अभी जो अपनी कहना चाहिए इस दौर की जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे इनके बारे में भी खबर दे रहे हैं। अलबत्ता ये कि इनसे नसीब का हाल मालूम करना, अपनी किस्मत का, ये चीज़ मना है। अल्लाह ताला ने इनको बनाया ज़रूर है, लेकिन इनकी वजह से किसी की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ नहीं आती हैं। और दूसरी बात ये कि तब्दीली इंसान के अंदर अपने अमल और उसकी जो अपनी नीयत और सोच होती है और उसके मुताबिक जो अमल करता है उसके मुताबिक होती है, या जो तौफ़ीक उसको अल्लाह से मिलती है, जो दुआओं में माँगी जाती है। तो ये यहाँ पे इसका ज़िक्र हुआ। और इसी तरह इसने रात और दिन को एक-दूसरे के पीछे आने-जाने वाला बनाया है। उस शख़्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करे या शुक्रगुज़ारी करने का इरादा रखता हो। रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन में फ़रोतनी के साथ चलते हैं और जब वो बेइल्म लोगों से बातें करने लगते हैं तो कह देते हैं कि सलाम है। यानी कि वो अच्छे तरीके से दुनिया में गुज़र-बसर करते हैं, लेकिन जब बेइल्म लोग जो उनसे उनसे बात करें या उनका उनसे वास्ता पड़ जाए या वो झगड़ने के लिए आएँ तो वो उनको सलाम कह देते हैं। यानी कि वो ज़्यादा उनके साथ जो है मतलब झगड़ा या बहस या ये कि इस की बात नहीं करते, उनको सलामती कह कर के साइड पे हो जाते हैं। और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुज़ार देते हैं, जो ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अज़ाब परे-परे ही रख, क्योंकि इनका अज़ाब चिमट जाने वाला है, या ये कि बुरी जगह है ये। तो यहाँ पे जो रहमान के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने उनकी सिफ़ात में ये चीज़ बयान फ़रमाई कि वो दुनिया में भी अपने आप को झगड़ों से अलहदा करके रखते हैं और अहले जहालत या जो कि अपने जज़्बात को काबू ना रख सकते हों, जो अपने जो इल्म ना दिए गए हों और अहले सफ़ाहत जो से हैं, इनसे तो वो ज़्यादा बहस की पॉलिसी नहीं उनकी होती, बल्कि ज़्यादातर इग्नोर की होती है। और जो उनकी सिफ़ात में है, अल्लाह ताला के इबादत में वो मसरूफ़ होते हैं और अल्लाह से ही डरते हैं और अब दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को पा गए हुए हैं, ताकि वो यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकें और उनके नामा-ए-माल में वो चीज़ हो। लिहाज़ा अल्लाह ताला की अताअत का मौका मिला भी हो, तो इसमें देखिए अल्लाह ताला ने उनका किसी जगह के ऊपर भी गुरूर का होना, तकब्बुर का होना, इस किस्म की नेगेटिविटी का नहीं लिखा। एक्चुअली इंसान की नफ्सियात के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, वो ये वाले इमोशंस होते हैं, जो एक्चुअल नेगेटिविटी है। जबकि लोग किसी और चीज़ को नेगेटिविटी बनाते हैं, तो जो जिस इंसान के अंदर हसद, तकब्बुर और इस तरह की चीज़ें होती हैं और गुरूर, तो शैतान वाला मामलात उसके साथ होने शुरू हो सकता है। और भी कोई क्वालिटीज़, पॉज़िटिव क्वालिटीज़ भी हों, लेकिन तमाम पॉज़िटिव क्वालिटीज़ को ये चीज़ें तबाह कर देती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको ऊपर देखना चाहिए और वो चीज़ों को देखना चाहिए कि अल्लाह ताला किसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो अपने इबादत के घुमंड में नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह के जितनी इबादत में अगर कोई तरक्की करता है तो उसको अल्लाह का ये फ़िक्र होना चाहिए कि पता नहीं अल्लाह ताला उसके बारे में जो है वो क्या उस तरह से क्या इमेज अल्लाह के आगे है, लोगों के आगे नहीं, इसका बारे में सोचते हो। तो इसीलिए सूरह अल-मोमिनून के अंदर भी है कि वो लोग कह देते हैं कि जो कुछ देते हैं, इनके दिल डरते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। तो इन तमाम इसके अलावा अल्लाह के आगे जो भी अच्छे नेक काम किए जा रहे हैं, उससे फिर दुआ करने के बाद वो दोज़ख के अज़ाब और उससे पनाह माँग रहे होते हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में जब पूछा था कि क्या इससे मुराद वो लोग भी हैं जो शराब पीते और चोरी करते, तो आपने फरमाया नहीं ए अबू बकर की बेटी, ये बल्कि ये वो लोग हैं जो रोज़े रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, सदका करते हैं, लेकिन इसके बावजूद डरते हैं कि कहीं इनके ये अमाल नामकबूल ना हो जाएँ। जामिया अल-तिरमिज़ी की हदीस 3175 है। ये सूरह अल-मोमिनून की जो आयत है ना, कि जिसके अंदर ये जो जिसको इसकी आयत की तफसीर में जो है वो बयान किया गया है, ये उसके बारे में हदीस है। तो जो उनका डरना है वो ये है कि कहीं उनके नामा-ए-माल ज़ाया ना हो जाए, ताकि जो है कोई और गलती से किसी और जगह पे जो किए गए अच्छे अमाल ज़ाया ना हो जाए, वो ये बात है। तो बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज़ से बदतरीन जगह यानी कि दोज़ख का तज़किरा हो रहा था ना, उसके बारे में जो है उनके ख़्यालात, उनकी दुआओं का ये हिस्सा होता है। और ये जो खर्च करते वक़्त ना तो इसराफ़ करते हैं, ना बख़ीली करते हैं, यानी कंजूस नहीं बनते, ना ज़्यादा कर देते हैं, ना कंजूसी करते हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान मोतदल तरीके से खर्च करते हैं और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद को नहीं पुकारते हैं। किसी ऐसे शख़्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने मना कर दिया हो, वो बजुज़ हक़ के कत्ल नहीं करते, ना वो ज़िना के मुर्तकिब होते हैं, और जो ये कोई काम करे उसे अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा। तो क़यामत के दिन उसे दोहरा अज़ाब दिया जाएगा और वो ज़िल्लत व ख़्वारी के साथ हमेशा इसी में रहेगा। तो बात है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों की जो अच्छी सिफ़ात है वो बयान की और इसके बाद जो है कत्ल नहीं करते, यानी कि वो इस तरह की हद तक चीज़ों में इंडल्ज नहीं होते कि उनके हाथों से ये वाला काम हो। तो अल्लाह ताला से ये जो नेक सिफ़ात बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला ये वाली सिफ़ात हमारे अंदर जो है वो अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे अंदर ये वाली सिफ़ात पैदा कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि ये सिफ़ात पैदा हो जाना जो है और इसी तरीके से इनके साथ दुनिया से चले जाना, इसका मतलब ये होगा कि दुनिया में कामयाबी हासिल हो गई है। क्योंकि ये काफ़ी उन चीज़ों से मतलब बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स हैं ये। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि ये जो सूरह अल फुरक़ान के अंदर अच्छे लोगों की आदात आ रही हैं, उनकी ख़ुसूसियत जो अल्लाह ने तारीफ़ की है, ये हमारा जो है ना टारगेट होना चाहिए। तो सवाए उन लोग के जो तौबा करें और ईमान लाएँ और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों कि अल्लाह को अल्लाह नेकियां बदल देता है, अल्लाह बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला है। जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे, यकीनन अल्लाह की तरफ सच्चा रुजू करता है। और अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला यही बयान फरमा रहे हैं कि जो तौबा करके अल्लाह से रुजू करता है, तो अल्लाह ताला उसको मतलब जो है उसके अमल को कबूल कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब थोड़ा-सा सोच लेना चाहिए कि दुनिया में इस वक़्त जो कुछ भी लोगों की ज़ाहिर पर्सोना या उनके प्रोफ़ाइल में शो होते और जो उनके असल अमल है, जब वो किसी भी लीक से पता चलते हैं कि ये उनके असल अमल है, ये उनके असल चेहरे हैं,
तो आप यकीन करें कि मेजॉरिटी दुनिया की जिनको फ़ॉलो कर रही है, जिनको देखती है कि ये इस मुकाम पे है, उस मुकाम को हासिल करने के लिए वो भी बहुत सारे गलत कामों की तरफ आते हैं। क्योंकि जैसे मेंटोर रखे होंगे, जैसे टारगेट्स रखे होंगे, जैसे किरदार जैसे ये कहना चाहिए कि जिन लोगों को देखा जाता है कि इस दर्जे पे पहुँचे हुए लिहाज़ा ये किया जाए, तो फिर वो उन्हीं लोगों को फ़ॉलो करने लग जाते हैं कि जिन्होंने किरदार की और दीन की कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो करनी चाहिए उसकी जगह पे शैतानियत की बातें की हुई होती है। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो उन्हीं को फ़ॉलो करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको वो दर्जा, वो जगह, वो स्टेटस चाहिए होता है। अब अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत का वादा किया है। दुनिया में इतनी दुनिया तो चाहिए कि इंसान अच्छे तरीके से किसी का जो है वो मतलब किसी के ऊपर डिपेंड किए बगैर जो है वो गुज़ारा कर ले और इंडिपेंडेंट होकर के यहाँ से गुज़र जाए और बल्कि मदद करने वाला खुद मोमिन हो। वो जो और इस कदर ताकतवर हो कि वो दूसरे की भी मदद कर सके, उ उसको और अल्लाह के दीन के ऊपर चले और ताकि वो एक अच्छी मिसाल बने कि वो दूसरों को भी अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे। और ये ख़ुसूसियात जो है उसके अंदर आनी चाहिए जो कि पहले बयान कर दी गई हैं। तो वो इंसान कामयाब होगा कि जो अल्लाह को राज़ी कर ले और अल्लाह के लिए जो है दुनिया में जो है वो अमल कर ले और उसको दुनिया और आखिरत मिलेगी कि उन लोगों को जिन्होंने दुनिया में कुछ लोगों को देखा और उनको फ़ॉलो किया और उनकी खातिर शैतान के रास्ते पे चले ताकि वो सिर्फ़ दुनिया का वो कुछ हासिल कर लें। आखिरत का तो फिर उन्होंने कोई भी नहीं जो है वो काम करने की ठानी या ये कि उस चीज़ को माना। तो बात ये है कि ये इंसान की अपनी चॉइसेस होती हैं और जो चीज़ें इंसान को चाहिए कि वो जितनी रिसर्च से ये चीज़ें साबित हुई कि अगर इंसानों को सब तरह की लग्ज़री भी दे दी जाए और इतना कि वो सबसे अमीर कभी भी बन जाए, तब भी इंसान के अंदर से बेचैनी नहीं जाती क्योंकि अल्लाह ने इस किताब में जो चीज़ लिखी है वो वही है, इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब कि अल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही जो होते हैं वो इंसानों के दिल जो होते हैं वो इत्मीनान पाते हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। तो जो लोग झूठी गवाही नहीं देते और किसी लफ्ज़ चीज़ पर उनका गुज़र होता है तो शराफ़त से गुज़र जाते हैं, यानी बुराई के जो रास्ते होते हैं वहाँ पे वो इस तरीके से जो है वो करते हैं और जब इन्हें इनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो अंधे बहरे होकर इन पर नहीं गिरते, यानी कि वो इस मामले में भी सोचते हैं और दीन को सोच समझ के जो है कबूल करते हैं और ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार तू हमें हमारी बीवी और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना दे। ये जो दुआ है ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है। इसको सजदों से लेकर के तशहद और नमाज में किसी भी जगह पे मांगा जा सकता है, खासतौर पर सजदों में तो बहुत ही मकबूल है और उठते बैठते हुए इस दुआ का जो है इत्माम किया जाना चाहिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रतुन अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। तो अल्लाह ताला से जो दुआ की जाती है कि ऐ वही और ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार तू हमें हमारी बीवियों यानी ज़ौज जो होगी मियाँ के लिए बीवी और बीवी के लिए उसके शौहर जो हैं वो औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का पेशवा बना दे यानी इमाम बना दे। तो इसमें परहेज़गार होने की दुआ माँगी गई है और बल्कि उनका इमाम होने की दुआ माँगी गई है। तो इमाम के ऊपर तो भारी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो है वो उसको दीन की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, उसकी समझ ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये नेकी के अमल में इज़ाफ़े के लिए दुआ ये भी काम आती है। और इसके अलावा जो अच्छे नेक साथी जो उनसे हैं, जिस जगह पे इंसान काम करे या ज़िंदगी में जो उनसे है, वहाँ पे भी ये उनके लिए दुआ के लिए भी माँगी जा सकती है। देखिए इसमें औलाद जो आइंदा आने वाली और औलाद में अगर कोई उस्ताद इसको माँगता है तो वो उसके लिए औलाद तो वो भी हो जाती है कि जो उसकी रूहानी औलाद होती है कि जो उससे दीन का और नेकी का इल्म सीखे। तो और यही लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बाला खाने दिए जाएँगे, जहाँ इन्हें दुआ सलाम पहुँचा दिया जाएगा। तो बात ये है कि ये उन लोगों की दुआ है जिनको अल्लाह ने जब कबूल किया तो अल्लाह ने बताया कि उनके साथ क्या करेंगे। तो ऐसी दुआएँ जिनको अल्लाह ताला ने कबूल कर चुके हुए हैं और जिनके बाद उसको आखिरत में जिनका आखिरत में इतना बड़ा दर्जा है तो हमें जब अगर वो बताई जाएँ तो क्या वो अल्फ़ाज़ इसमें आज़म नहीं हैं? क्या उन अल्फ़ाज़ को अल्लाह ने पसंद नहीं किया है? तो क्या वो अल्फ़ाज़ जो हैं हमारी सुबह-शाम की इबादत में, सुबह-शाम अल्लाह को पुकारने में उसका हिस्सा नहीं होने चाहिए? तो ये वो एक बात है जब हम अल्लाह ताला की बात को जब देखते हैं ना तो हमें हिंट पता चलता है कि अल्लाह ताला कैसे-कैसे बात बयान करते-करते हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें बयान करते हैं कि हमें ये दुआएँ माँगनी चाहिए और ये इस तरह का अमल करना चाहिए ताकि हम कामयाब हो जाएँ। तो क्योंकि हमने सूरह अल-फ़ातिहा में दुआ जो माँगी थी कि अनअमत अलैहिम तो हमें इनाम किए गए लोगों की जो बारे में जो है वो चीज़ें बयान की जा रही हैं। तो उसमें वो हमेशा रहेंगे और वो बहुत अच्छी जगह है और उम्दा मुकाम है। कह दीजिए कि अगर तुम्हारी दुआ और इल्तिजा ना होती तो मेरा रब तुम्हारी मुतलक परवाह ना करता। यानी कि तुम्हारी जो इंसानों की दुआ होती है, बाज़ दफ़ा अमाल ऐसे नहीं होते कि इंसान को जो है वो चीज़ें अता हो जाएँ। जो दुआ और इल्तिजा होती है, अल्लाह को पुकारना होता है, तो बाज़ दफ़ा वो चीज़ें जो इंसान को शायद उसके लिए लिखी ही ना गई हों, लेकिन उसके पुकारने से और माँगने से अल्लाह ताला जो है उनकी रहमानियत से, उनके करम से वो चीज़ मिल जाती है और अल्लाह ताला उस तरफ मुतवज्जा होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो इंसान का मकसद है पैदाइश का, यहाँ पे इस दुनिया में आने का, तो इस टेस्ट का सबसे बड़ा जो एक हिस्सा वो यही है कि हमने अपने रब को इसके साथ जुड़ना है, उनको पुकारना है, उनकी इबादत करनी है क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो उनकी इबादत करके उनसे नज़दीक होके इंसान की कदर कीमत जो-सी है वो बनती है। तुम तो झुठला चुके थे, अब इन करीब जो है इसकी सज़ा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी। तो ये जिन लोगों ने अल्लाह ताला को झुठलाया है और जिन इस तरह से जो है उनकी बातों को, उनकी नसीहतों को, उनके अच्छे पैगाम को, तो उनको फिर जो है वो जल्द ही जो है उस चीज़ की जो मतलब उसकी सज़ा मिलेगी। अब अल्लाह के नज़दीक तो क़यामत का आना हमसे ज़्यादा नज़दीक और जल्द है ना, तो इसलिए अनकरीब के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हमारी सूरत जो-सी है, सूरह फुरक़ान जो-सी है वो मुकम्मल हो जाती है और इससे आगे जो है वो सूरत अश-शुअरा जो है वो शुरू होती है। सूरह अश-शुअरा जो है वो मक्की सूरत है। इसके अंदर 11 रकू हैं और इसके अंदर 227 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीम ये आयतें रोशन किताब की हैं।
ये आयतें रोशन किताब की हैं, इनके ईमान ना लाने पर शायद आप तो अपनी जान खो देंगे। यानी कि वो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिलो-जान से इस चीज़ की चाहत करते थे कि जो काफ़िर लोग हैं और मुशरिक हैं, वो ईमान लेकर के आएँ ताकि एक दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। लेकिन वो अपनी उन ये चीज़ उनकी सेहत जो-सी है, वो उसके उत्तबा हो रही थी। लेकिन ये कि वो इस चीज़ की तरफ जो उनकी खैर-ख्वाही को नहीं जानते थे। तो अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसा निशान उतारते कि जिसके सामने इनकी गर्दनें ख़म हो जाती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो जिस तरह से ये चाहते हैं और जिस तरह से मुतालबे करते हैं और अगर अल्लाह ताला कोई ऐसा निशान या कोई ऐसी चीज़ उतारते ताकि ये लोग उस चीज़ को मान लेते। लेकिन अल्लाह का तरीका इस तरह से नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती जो है वो दीन को जो है तस्लीम करवाया जाए। इनके पास रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आती है वो इसे रूहगर्दानी करने वाले बन जाते हैं। जो भी नई नसीहत आती है तो रूहगर्दानी करना यानी उसको इग्नोर मारना, उसको छोड़ देना। तो क्या करते हैं यकीनन इन लोगों ने झुठलाया है। अब इनके पास जल्दी से इसकी खबरें आ जाएँगी जिसके साथ वो मसखरापन कर रहे हैं। तो बात ये है कि जिस चीज़ का मज़ाक उड़ाया जाता है अल्लाह के दीन का, तो यानी तकज़ीब का, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक अज़ाब जो-सा है वो अनकरीब इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तो ये इसी तरीके से कि जब कौमें ऐसे मज़ाक उड़ाया करती थी तो जो पहले कौमें तबाह हुई, तो उनको जब अज़ाब आ जाता था तो फिर किसी सूरत उससे जो है छुटकारा हासिल नहीं हो सकता था। तो ये एक कॉमन चीज़ है कि जब जिस चीज़ को वो लोग नहीं मानते थे, तो अंबिया के दीन में वो इस तरीके से जो है उनका मज़ाक उड़ाया करते थे। क्या उन्होंने ज़मीन पर नज़रें नहीं डाली कि हमने इसे हर तरह के नफ़ीस जोड़े किस कदर उगाए हैं, कि ये जिसके अंदर अल्लाह ताला ने नफ़ीस जोड़े यानी कि वो फलों के अंदर हों, पौधों के अंदर हों और या ये कि जिस तरीके से जानदारों में है, अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं। बेशक इसमें यकीनन निशानी है और इसमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं हैं और तेरा रब यकीनन वही गालिब और मेहरबान है जब कि आपके रब ने मूसा को वाज़ी के ज़ालिम कौम के पास जा और वो फ़िरौन के पास गए और क्या वो परहेज़गारी ना करेंगे? कि कौम फ़िरौन के पास क्या वो परहेज़गारी ना करेंगे? मूसा ने कहा कि मेरे परवरदिगार मुझे तो खौफ़ है कि कहीं वो मुझे झुठला ना दे और मेरा सीना तंग हो रहा है यानी कि उनको इस चीज़ का बोझ महसूस हो रहा था कि उनको एक बहुत बड़ा काम दे दिया गया और घबराहट हो रही थी और मेरी ज़बान चल नहीं रही। बस तो आप हारून की तरफ भी वही भेज दें और इनका मेरे ज़िम्मे एक गुनाह भी है। मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मार ना डालें क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम से फ़िरौनियों के यहाँ पे एक कत्ल हो गया था। अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ ऐसा ना होगा कि तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों फ़िरौन के पास जाकर कहो कि बिलाशुबा हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं। अल्लाह ताला ने उनको उनके पास जाने का कहा और जो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी जो पहले दर्ज हुई है, रब्बि इश्रह ली सदरी वाली वयस्सिर ली अमरी, जिसके अंदर अपने अमर के काम को आसान होने का, अपने दिल को सीने को खुलने का और तमाम चीज़ों की उन्होंने दुआएँ माँगी, अपने भाई के साथ की भी माँगी तो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और फिर कहा कि आप जाकर के दोनों के जो दोनों हैं वो फ़िरऔन के पास जाकर के उसको बताएँ कि वो रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं। अब देखिए वो भी रब बना बैठा होता था ना, खुद तो सुपर पावर भी था उस वक़्त की, लेकिन साथ में अपनी पूजा भी करवाता था। अपने अपना बुत बनवा कर के भी और बहुत सारे त्योहार भी जो-सा था वो मनवाता था और उसको खुद भी मनाता था और लोगों से बहुत तोहफ़े भी लिया करता था। और अल्लाह ताला ने वो अपने आप को रब कहता था और मिस्र के इलाके का और इस तरह से, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके सामने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की वो रब्बुल आलमीन की है, तमाम जहानों के रब। तो कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे और जो उसको पैगाम दिया गया था अल्लाह की बात को मान लेने के बाद मुतालबा सिर्फ ये था कि बनी इसराइल की कौम को वहाँ से छोड़ दिया जाए। तो फ़िरौन ने कहा कि क्या हमने तुझे तेरे बचपन के ज़माने में अपने यहाँ पाला नहीं था? तो बात है कि जब वो वहाँ पे गए तो फ़िरौन ने उनकी बात सुनने की बजाय उनको जो है ताने देने शुरू कर दिए कि वो बचपन में उन्होंने उनको उसको उसको पाला था और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुज़ार दिए यानी कि उनके महल के अंदर। फिर तू अपना वो काम कर गया जो कर गया, तू नाशुक्रों में से है और उनको ये सबके सामने ये कहने लग गया कि उन्होंने कोई बुरा काम किया है जो और वो नाशुक्रों में से है। तो मूसा ने अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इस काम को उस वक़्त किया था जब मैं राह भूले हुए लोगों में से था, यानी कि वो दीन को नहीं जानते थे और जो उनसे ज़्यादती हो गई। फिर तुमसे खौफ़ खाकर मैं तुमसे भाग गया, फिर मेरे रब ने इल्म को अता फरमाया और मुझे पैगम्बरों में से कर दिया। तो जब अल्लाह ताला किसी के ऊपर जो है अपनी नेमत को उतारने लगते हैं तो उसके गुनाह माफ़ करके उसको नेमत भी दे सकते हैं। मुझ पर तेरा किया ये वो क्या वही एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे पर एहसान किया था क्या इसकी वज़ह से बनी इसराइल को उसकी वज़ह से गुलाम बना रखा है? फिर उन्होंने कहा कि रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? तो अब जब उसको उसके सवालों के जवाब मिल गए और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मिले तो उस वक़्त उसको ख़्याल आया कि रब्बुल आलमीन कहा जो जा रहा है ये क्या चीज़ है? यानी कि वो जानना चाहता था ये किसके बारे में है? तो मूसा ने फरमाया वो तो आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान की तमाम चीज़ों के रब हैं। अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिर उन्होंने अपने इर्द-गिर्द वालों से कहा कि क्या तुम सुन नहीं रहे? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तुम्हारा और तुम्हारे बाप-दादाओं का भी परवरदिगार है। फिर उन्होंने कहा तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया ये तो यकीनन दीवाना है। तो उनके साथ तो उस वक़्त जो है उनके साथ जो थे दरबार में तो उसके दरबार में तो उनके भाई जो उनसे थे हारून अलैहिस्सलाम गए थे। तो उसने वहाँ पे इस तरह से उनकी तकज़ीब की। तो मूसा ने फरमाया कि वही मशरिक़ और मग़रिब का उनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है अगर तुम अक्ल रखते हो। वो फ़िरौन कहने लगा सुन ले अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूँगा। मूसा ने कहा अच्छा मैं तेरे पास कोई खुली चीज़ लेकर के आऊँ यानी कोई मोजज़ा लेकर के आऊँ? फ़िरौन ने कहा अगर तू सच्चों में से है तो इसे पेश कर। आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त अपनी लाठी डाल दी जो अचानक खुल्लम-खुल्ला अजदहा बन गई। तो ये अजदहा जो था वो आम नहीं था, वो काफ़ी बड़ा था और अपना हाथ खींच कर के निकाला तो उसी वक़्त देखने वाले को सफ़ेद चमकीला नज़र आने लगा। फ़िरौन अपने पास के सरदारों से कहने लगा भई ये तो कोई बड़ा दाना जादूगर है। ये तो चाहता है कि अपने जादूगर के ज़ोर से तुम्हें और तुम्हारी सरज़मीन से निकाल दे। बताओ अब तुम क्या हुक्म देते हो? अब जो
इंसान की सोच होती है, उसका सोचने का तरीका होता है। बाज़ दफ़ा नेकी के काम अल्लाह के हुक्म के दरमियान में शैतान इस तरह से हायल हो जाता है, जिन लोगों के ऊपर वो गलबा पाए हुए होता है, कि उनकी सोचों के अंदर जो है वो खराबी हो जाती है और उनको बात ही समझ नहीं आ रही। उन्होंने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया कि अगर फ़िरौन अल्लाह को मान लेता, तो उससे उसकी बादशाहत चली जाती और वो क्या कह रहा है कि ये तुम्हें तुम्हारी सरज़मीन से निकाल दे, और वो तो उनके निकालने की तो बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो वहाँ से बनी इसराइल को चले जाने की बात कर रहे थे। इन सब ने कहा कि आप इस भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में इकट्ठा करने वाले भेज दीजिए, जो आपके पास इसी इल्म के जादूगर को, ज़ी इल्म जादूगरों को ले आए, यानी उनसे भी बड़े अपनी तरफ से वो जादूगरों को बुला रहे हैं और उनको उनका मुज़्ज़ा जादू लग रहा है। फिर एक मुकर्ररा दिन के वक़्त तमाम जादूगर जमा किए गए और आम लोगों से कह दिया गया कि वो तुम भी मजमा में हाज़िर हो जाओ। अब देखिए इस रुख से जो बात बयान हो रही है, इससे पहले इस तरह से तफ़सीलन जो-सी थी दरबार की और कुछ बातों की अल्लाह तआला ने बयान नहीं की थी, ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाए तो हम इन्हीं की पैरवी करेंगे। तो बात ये है कि जो लोग वहाँ पे जमा हो गए, तो वहाँ पे जो है लोगों को ये चीज़ उसने प्रोपेगेंडा किया था कि जो है जो जादूगर जो गालिब आ गए, तो इसी की पैरवी की जाएगी, यानी कि फ़िरौन की। जादूगर आकर फ़िरौन से कहने लगे, अगर हम जीत गए तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा। फ़िरौन ने कहा, हाँ, बड़ी खुशी से, बल्कि ऐसी सूरत में तुम मेरे खास दरबारी बन जाओगे। तो उनको इनाम के साथ ये वादा भी कर लिया उसने। मूसा ने जादूगरों से फरमाया, तुमने जो कुछ करना है यानी डालना है डालो। उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दी और कहने लगे, इज़्ज़त फ़िरऔन की कसम है कि हम यकीनन गालिब ही रहेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे उनका रब बना हुआ था, तो उन्होंने उसकी कसम खा ली। अब मूसा ने भी अपनी लाठी मैदान में डाल दी, जिसने उसी वक़्त उनके बने बनाए खिलौनों को निगलना शुरू कर दिया, जो जादू था ख़त्म कर दिया। देखते ही देखते जादूगर सजदे में गिर गए। उनका इसके अलावा कोई इल्म नहीं था। वो उस इलाके के सबसे बड़े जादूगर थे। जो इस इल्म का होता है, उनको पता चल गया कि ये जादू नहीं, ये तो कुछ और है। उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ईमान ले आए, यानी मूसा और हारून के रब पे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी इजाज़त से पहले तुम इस पर ईमान ले आए, यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा है जिसने तुम सबको जादू सिखाया। और उसको जल्दी में कुछ ना सूझा, तो वो ये कहने लगा, हालाँकि इतने अरसे से मूसा अलैहिस्सलाम उस इलाके में नहीं रहते थे, और वो जब महल में भी रहते थे और उस इलाके में भी रहते रहे मिस्र में, तो उन्होंने कभी जादू नहीं सीखा था, ना ही ऐसी कोई बात उनकी उन ज़िंदगी में से थी। लेकिन चूँकि वो हार चुका था, वो बात जो सोच रहा था, और वो तमाम तमाम जादूगर जो उनसे थे, अल्लाह पे ईमान ले आए थे, तो लिहाज़ा अब उसको शर्मिंदगी में कुछ सूझ नहीं रहा था, और उसने उनके साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल झूठ था, और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो तुम्हें अभी-अभी मालूम हो जाएगा कि कसम है, मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ-पाँव उल्टे तौर पर काट दूँगा, तुम सबको सूली पे लटका दूँगा, क्योंकि इस तरह से जो हाथ-पैर काटे जाते हैं कि ज़िंदगी में उनको कितनी जो है मुसीबत का शिकार किया जाता है, और उनको इस सज़ा के साथ जो है ज़िंदगी में ज़िल्लत देखनी पड़ती है। उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं, हम तो अपने रब ही की तरफ लौटने वाले हैं। अब वो ईमान उनके अंदर इतना रासिख़ हो गया था, जो ईमान लेकर के अल्लाह ने उनको मज़बूती अता की, तो उन्होंने कहा, हम तो अपने रब की तरफ ही वापस जाएँगे। इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान वाले बने हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमारी सारी ख़ताएँ माफ़ फरमा देगा। हमने मूसा को ये वही की कि रातों-रात मेरे बंदों को लेकर निकाल ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। अब भी दरमियान में जो भी वाक़यात थे, उनको बार-बार ईमान की दावत दी जाती थी, और अज़ाब भी आए उनके ऊपर, मिस्रियों के ऊपर। वो तमाम बातें स्किप करते हुए अब ये बात आ गई फाइनल, कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि बनी इसराइल को जो है मिस्र से निकाल दिया जाए, तो और साथ ही भी बता दिया गया कि वो लोग फ़िरौन की कौम जो है पीछा करेंगे। तो फ़िरौन ने शहरों में नकीब रवाना किए, लेकिन ये गिरोह बहुत ही कम तादाद में है, और इस पर हमें ये सख्त गज़बनाक कर रहे हैं। तो फ़िरौन ने इनके ऊपर जो है, इनके बारे में जो जो भी कुछ उसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, तो उसने सबको अलर्ट कर दिया, अपनी सारी टीम को, जो उसके पूरे मुल्क में जो उसके फैले हुए थे उसकी हुकूमत के बंदे, और उनको ये कह दिया कि ये लोग गिरोह बहुत ही कम तादाद में। इससे पता चलता है कि फ़िरौनी जो थे, वो ज़्यादा बड़ी तादाद में, हालाँकि मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम 6 लाख की तकरीबन तादाद बनती है, लश्कर जो उनका वो लेकर के वहाँ से चले थे। देखिए, एक पूरी इतनी बड़ी कौम को एक जो नबी के जो है उसके पीछे चलना, पैरवी करना, बज़ाते खुद जो-सा है एक बहुत बड़ा अमर है, कि उनके ऊपर कितने किस किस्म के दौर आते रहे। लेकिन ये कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दौर से भी गुज़रे। तो फ़िरौन ने जो पैगाम पहुँचाया था, उस पे ये कहा कि ये हमें सख्त गज़बनाक कर रहे हैं, और यकीनन हम बड़ी जमात हैं, इनसे चौकन्ना रहने वाले हैं, यानी कि वो अलर्ट थे कि ये क्या करते हैं। बिलाखिर इन्हें बागात से और चश्मों से निकाल बाहर किया, यानी कि जब उन्होंने फिर पीछा किया, और वो जो पानी का जो फटना था दरिया का, तो उसके दरमियान वो ग़र्क कर दिए गए। तो अच्छी भली जगहों से निकाल करके अल्लाह ताला ने उनको पानी में ग़र्क कर दिया, और इनके तकब्बुर की वजह से, और ख़ज़ानों से और अच्छे-अच्छे मुकामात से भी निकाल बाहर किया। इस तरह ये हुआ कि हमने इन तमाम चीज़ों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फ़िरऔनी सूरज निकलते ही इनके ताक़ुब में निकले, तो अल्लाह ताला ने जो है वो पहले इनका अंजाम बता दिया है, और उसके बाद आगे मज़ीद तफ़सील आ रही है कि उस वक़्त और क्या हुआ, और ये कि उनका वारिस बनी इसराइल को कैसे बना दिया। बनी इसराइल तो वहाँ से उस वक़्त दरिया के पार जा रही थी। तो यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि आने वाले वक़्त में जब ये इलाका और जो इक़्तिदार और बादशाह जो फ़िरौन को हासिल थी, वो छीन करके बनी इसराइल को दे दी गई थी, क्योंकि बनी इसराइल मिस्र से चले जाने के बाद मिस्र वापस नहीं आए। तो जो है जिस तरीके से अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि हमने इसका वारिस किसी दूसरी कौम को जो है बनाया। तो इससे दूसरी कौम से मुराद जो-से है, कुछ तफ़ासीर में जो है उलमा उससे ये लेते हैं कि बनी बनी इसराइल ही है, क्योंकि यहाँ सूरह शूरा में बनी इसराइल को वारिस बनाने की सराहत आ गई है। ये ज़रूरी नहीं कि वही बनी इसराइल हो जो मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा थे, और इससे मुराद ये भी होगा कि जो दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है बनी इसराइल मिस्र पर गालिब आ गए थे। तो ये भी मुमकिन है कि ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल में से एक जमात मिस्र आ गई हो। बहरहाल अल्लाह ताला ने एक वक़्त आया कि उन्हीं लोगों को जो वहाँ पे गुलाम बना दिए गए थे, एक तो पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में आए थे, जब कहत का दौर था, तो कनान से जो है वहाँ पे इनको उन्होंने अपनी तमाम ख़ानदान समेत उनको वहाँ बुलवा लिया था, अपने भाइयों को। तो उसके बाद
उसके बाद ये मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है जिसके अंदर वो कि गुलामाना कौम को निजात दिला रहे हैं और उसके बाद दोबारा एक दौर आया। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला का जो है अपना फ़ैसला होता है कि किसको जो है वो किस जगह क्यों अता की जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं तर्जुमे को। तो बस फ़िरऔनी जो थे सूरज निकलते ही इनके ताक़ुब में निकले। बस जब दोनों जमातों ने एक-दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा कि हम तो यकीनन पकड़ लिए गए हैं। और मूसा ने कहा अब खुद सोचें कि एक इतना बड़ा लश्कर जो 6 लाख की तादाद अगर बताई जाती है इससे ज़ायद भी, तो 6 लाख अफ़राद जब चल रहे होंगे और वहाँ से निकल रहे होंगे तो उनका वाक़ई निकलना तो कौम वो फ़िरौनियों को पता चल सकता है। तो वो उनके पीछे आए भागते के ताकि वो उनको सज़ा दे सके, उनको पकड़ सके। तो जब उनकी कौम ने इस तरीके से कहा तो मूसा ने कहा कि हरगिज़ नहीं यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो ज़रूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपना असा मारो उस वक़्त बस उसी वक़्त दरिया फट गया और हर एक हिस्सा पानी का मिस्ल बड़े साइज़ पहाड़ का हो गया, बड़े सारे पहाड़ का हो गया। हमने इसी जगह दूसरों को नज़दीक ला खड़ा कर दिया और मूसा को उसके तमाम साथियों को निजात दे दी। तो ये जिनको नज़दीक ला खड़ा किया था ये इनके बारे में बयान किया जा रहा है। यानी फ़िरौनी जो थे पहले उनको जाते हुए दरिया के दूसरे किनारे पे देखते रहे और जो है उसके बाद जब उन्होंने भी उनका पीछा करने की कोशिश की कि ये पानी जो-सा है इसी तरह शायद रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया कि जब वो मूसा को उसके तमाम साथी को निजात दी थी और फिर उस सब दूसरों को डुबो दिया। तो जब दूसरों ने उनका पीछा किया तो उसी रास्ते से उनके पीछे हमलावर होने लगे, तो उनके ऊपर पानी की जो लहरें थी मिला दी गई तो वो उसके नीचे डूब गई। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है, इनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं हैं और बेशक आपका रब बड़ा ही गालिब और मेहरबान है। इन इब्राहीम का वाक़या सुना दो कि जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो? जब उन्होंने जवाब दिया कि बुतों की इबादत करते हो, हम तो बराबर इनके मजावर बने बैठे हैं। यानी कि जो वो लोग थे जो बुतों की पूजा करते थे और जिस भी किस्म के वो बुत बनाते थे, तो उन्होंने कहा हम तो इनके बराबर इनके कदमों में जैसे कहीं के बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं उनकी उन्हीं को साफ-सुथरा करके उन्हीं के ऊपर वो जैसे लोग बुत बना करके और उन्हीं के ऊपर जो है एक अजीब तरह का मोर का पर या किसी चीज़ के साथ उन्हीं को हवा दे रहे होते हैं, उन्हीं को झाड़ रहे होते हैं, तो ये मजावर बने हुए थे उसी तरह के बुतों की। तो आपने फरमाया कि जब तुम इन्हें पुकारते हो क्या वो सुनते हैं? क्या तुम्हें नफ़ा और नुकसान भी पहुँचा सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम तो कुछ नहीं जानते और हमने तो अपने बाप-दादाओं को इसी तरह करते पाया। उनको ये लगता था कि ये बस नेकी का अमल है। आपने फरमाया कि कुछ खबर भी है जिन्हें तुम पूछ रहे हो, तुम और तुम्हारे पहले बाप-दादा भी, वो सब मेरे दुश्मन हैं वजूद सच्चे अल्लाह के जो तमाम जानों का पालनहार है, यानी वो पालता है, जिसने मुझे पैदा किया और वही मेरी राहबरी करता है और फरमाता है और वही है जो मुझे खिलाता-पिलाता है और जब मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे शफ़ा अता फरमाता है। यानी वो मुझे ठीक कर देता है और सेहत देता है, वही मुझे मार डालेगा और वो फिर ज़िंदा करेगा और जिसने उम्मीद बंधी हुई है कि हर रोज़ जज़ा मेरे गुनाहों को बख्श देगा। देखिए कि यही दीन हमारा है और यही बात हज़रत इब्राहीम जो कि उम्र में बहुत छोटे थे, जिन पे वही आई और वो लोगों के सामने अल्लाह का ये दीन पेश कर रहे हैं। तो आप बताइए कि दीन इब्राहीमी बिल्कुल इसी तरीके से कि रोज़े जज़ा के ऊपर भी ईमान है। तो अब जो अहले किताब जो उस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में जो है रोज़े जज़ा के ऊपर भी यकीन नहीं रखते थे, दोबारा ज़िंदा उठने की भी चीज़ को खो बैठे थे, इस ईमान को। तो आप बताइए कि वो किस तरह से दीन इब्राहीमी के ऊपर जो है वो चल रहे थे। तो बात ये कि यहाँ पे अल्लाह ताला के नबी ने जिस तरह से ज़िक्र किया और वो आगे मज़ीद बात कर रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार और वही मुझे मार डालता है फिर ज़िंदा कर और जिससे उम्मीद बंधी हुई कि वो रोज़े जज़ा मेरे गुनाहों को बख्श देगा। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे क़ुव्वत फ़ैसला अता फ़रमा, मुझे नेक लोगों में मिला दे और मेरी ज़िक्र खैर को पिछली लोगों में भी बाकी रख। अब ये जो उनका ज़िक्र होता है दुरूद इब्राहीमी जो पढ़ा जाता है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का हिस्सा कि मेरी ज़िक्र खैर को पीछे लोगों में बाकी रख। देखिए सदका जारिया हम इस तरह से बात करते हैं कि सदका जारिया तो हज़रत इब्राहीम ने अपने लिए सदका जारिया माँगा था। हज़रत इब्राहीम ने अपने लिए सदका जारिया माँगा था कि उनके लिए भी दुआओं के लिए हाथ उठते हों, उनके लिए भी कोई नेक अमल होता हो। तो उन्होंने जिस तरीके से अल्लाह ताला के दीन पे अमल किया और अल्लाह ताला ने उनको जो बरगुज़ीदा कर दिया यानी कि उनका नेक अमल जारी और सारी कर दिया, उनकी बातों को कबूल कर लिया और उनकी अच्छी चीज़ों को चुन लिया और उसी तरीके से आगे जो आने वाली कौम और उम्मत को जो है वो कहा कि इसी तरीके से अमल किया जाए। तो बात ये है कि हज़रत इब्राहीम की ये दुआ जो है रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वाली वो मुकम्मल होगी और ये दुआ जो है ये हज़रत इब्राहीम की दुआ है, जैसे बाकी अंबिया की दुआ भी जो है कुरान पाक में लिखी गई है। तो ये भी पढ़नी जो-सी है बड़ी ज़रूरी है और रमज़ान के इन दिनों में जो अंबिया की दुआएँ हैं, उनको पढ़ा जाना चाहिए। इसी तरीके से जो दुआएँ हदीस से साबित हैं, ताकि अल्लाह ताला उनकी जो उसके अंदर बरकतें माँगी गई हैं, वो हमें अता करे। तो और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में बना दे और मेरे बाप को बख्शिश, यकीनन वो गुमराहों में से था। तो जिस दिन के लोग उठा खड़े किए जाएँगे, मुझे रुसवा ना करना। तो ये उस दिन जो लोग उठा खड़े किए जाएँगे, उस वला तुहज़नी यौमा युबअसून, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस दिन अल्लाह ताला उठा खड़ा करेंगे यौम महशर को, तो उस दिन वो जो है उनका सारा जो है मामला जो है वो रुस्वा करने वाले लोगों के साथ ना हो, बल्कि कामयाब लोगों के साथ हो। तो ये दुआ जब उन्होंने जिस वक़्त ये माँगी थी, उस वक़्त उनको अंदाज़ा हो गया था कि उनके वालिद जो उनसे हैं वो अल्लाह के दुश्मन हैं और जो अल्लाह ताला की बात को नहीं मान रहे। तो उन्होंने अपने वालिद के लिए जो है उस वक़्त जो है वो तो उस तरह से बेज़ारी का इज़हार किया। तो जिस चीज़ का इन्होंने दुआ माँगी उसके बारे में आगे भी इस तरह से कहा जाए कि जिस दिन और भी उनकी दुआ जारी है कि जिस दिन माल और औलाद कुछ काम ना आएगी, लेकिन फ़ायदे वाला वही होगा जो अल्लाह के सामने बेऐब दिल लेकर के आएगा और इन परहेज़गारों के लिए जन्नत बिल्कुल नज़दीक ला दी जाएगी। गुमराह लोगों के लिए जहन्नुम ज़ाहिर कर दी जाएगी और इनसे पूछा जाएगा कि जिनकी तुम पूजा करते थे वो कहाँ है? अल्लाह ताला ने
ने उनकी दुआ के बाद जो-सा है दोबारा से सवाल किया है कि जहन्नुम के साथ ये मामला होगा और जन्नत के साथ ये मामला होगा, तो फिर ये क्या जो है इसका बारे में वो फैसला करते हैं इंसान आज जो इस मामले को सुन रहे हैं, जो अल्लाह की सिफ़ात है, क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं या कोई बदला ले सकते हैं? जब वो दोज़ख में डाले जा रहे होंगे, तो अल्लाह ताला उस वक़्त ये सवाल करेंगे उनसे। बस वो सब जो थे बस वो सब और कल गुमराह लोग जहन्नुम में उंधे मुँह डाल दिए जाएँगे और इब्लीस के तमाम लश्कर भी, और वो वहाँ आपस में लड़ते-झगड़ते हुए कहेंगे कि कसम अल्लाह की यकीनन हम तो खुली गलती में थे, जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ बैठे थे किसको? शयातीन को। यानी कि शैतान जो इस दुनिया में, जबकि जैसे अब पता चल रहा है कि तरह-तरह के लोगों ने मज़हब बना लिए हैं जिनमें शयातीनों की पूजा होती है, तरह-तरह के शैतानों की उनकी मदद माँगी जाती है, दुनिया की छोटी-सी जो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए। जबकि अल्लाह ताला से सब्र के साथ जो है नमाज़ के साथ मदद माँगी जाए, तो दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ मिलती हैं। उनके यहाँ पे मदद ज़रूर पहुँच के रहती है, लेकिन ये है कि अल्लाह के रास्ते में तकालीफ को बर्दाश्त करना, और वो जो कि आनी ही है, वो इंसान जो है उन तकालीफ को खुद से तो दूर नहीं कर सकता। अगर जबकि वो आ गई हों, तो उसको दूर तो हमारे रब कर सकते हैं। तो किसी शैतान से इसकी मदद लेने की बजाय अगर अल्लाह ताला से मदद ली जाती है, तो वो क्या मामला होता है? इंसान इसमें कामयाबी है कि नाकामी? तो बात ये है कि ये बात उस तरह से वहाँ सोचनी चाहिए। तो वो जिन लोगों ने दुनिया में शयातीन से जो है वो किसी भी सूरत हाल में उनसे मदद ली होगी, तो सोचिए जो लोग आज के दौर में जादू टोनों का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से मगरबी दुनिया में देखें तो वहाँ पे भी जादू टोना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें हैं, और ख़ास तौर पे यहूद जो हैं उनको जिस तरीके से गलतफ़हमी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाने के बाद वो दुनिया में ताकतवर तरीन जादू जो है वो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसको जायज़ समझते हैं। तो और इसी तरीके से बाकी दुनिया की जगहों में भी जिस तरह से जादू का ज़ोर है, अगर वो समझते हैं कि किसी के ज़हन पे काबू पा करके वो जो है, चूँकि जादू नज़र का धोखा होता है, ज़हन पे काबू पाया जाता है, तो ज़हन पे काबू पा करके जो है काम कर लिए जाएँगे, तो ये दुनिया का ही इनका फ़ायदा है। आखिरत में तो ऐसे लोगों को कोई जो है वो हक नहीं होता। तो कि कसम अल्लाह की यकीनन हम तो खुली गुमराही गलती में थे, तो उस वक़्त वो अपनी गलती को मानेंगे, और जो तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ बैठे थे, हमें तो सवा इन बदकारों को किसी और ने गुमराह नहीं किया था।